Assalamu alaikum. Hi everyone. I am Syed Hashir Ali and welcome to my vlog on CPU network integration model. Before moving forward, I show some gratitude of my teachers, Engineer Irfan Yunus, who gave me this opportunity to create this type of project. Let's discuss other things. First of all, I want to share some knowledge regarding this project, CPU network integration model. What is CPU network integration model? What is the objective of this project and how it's work. So let's discuss step by step. This project showcases a robust and secure network design connecting Sakhar IBA University main campus with its hypercampus. The objective of this project is to simulate an efficient network infrastructure that supports seamless communication across campuses while ensuring data security and performance. The system utilizes VLANs and interconnected network designed and tested in Cisco Packet Tracer. This report highlights the security protocol and configuration implemented to ensure privacy, data integrity, and seamless inter-campus communication. So, the network has become an essential tool for a student, researcher, and educator. In educational environment, network plays a key role in enabling the sharing of information, promoting collaboration. Network security is a critical and safeguarding against these vulnerable and ensuring the reliability of communication infrastructure. To address these challenges, I have developed the CPU network integration model, which includes multiple VLANs and employ a strong security protocol to guarantee secure access. This network is designed to prevent unauthorized access, ensuring the protection of both data privacy and integrity. So, the Cisco Packet Tracer was used as a primary tool for designing and simulating a CPU network integration model. CPT is a powerful simulation platform developed by Cisco System, widely used in network education. For practical learning, it offers a realistic environment to design, configure, and troubleshoot network, making it ideal for this project. This is also reliable for security protocols such as spanning tree protocol, STP, you can say that, which helps resolve network loop issues, especially the complex topologies with multiple interconnected switches. This feature was utilized to ensure both stability and security within the network. So the next is implementation to build the CPU network integration model. Both wired and wireless devices were connecting using diverse communication media. Key configuration including VLANs, VHCP, and RIP ensured efficient network management and seamless inter-campus connectivity. Security measures were applied at critical devices to safeguard the network from threat, ensuring the stable and secure infrastructure. In previous, I was telling you this is also reliable for security purpose. This is main purpose of this project to create this project is security. So, what is the topology of this project? The topology is the network and network. The CPU network integration model topologies include multiple buildings across the Sakhar and Kharpur campuses, such as academic block, block, business block, library, and more. Each block is equipped with devices like switches, computer, server, and wireless router. These devices are locally connected to switches, which are then linked to route for inter-campus connectivity, as shown in topology diagram. This is my topology diagram. This is main campus of CPU, and this is Kharpur campus. You can say that this is the network topology diagram. Sakhar IB main campus is separated. This is whole Sakhar campus. You can see in your screen. And this is admin block. This is AB1. Any means academic block 1, academic block 2, academic block 3, academic block 4, academic block 5. And this is hypercampus. I am not using much more departments because I want to tell you how the system was interconnected between two campuses. Which one is Sakhar and second one is Kharpur. How the system interconnected and how they perform activities.
So the next is required resources. I can use multiple switches, routers, servers, PCs for different departments and role and various cables. So, so let's moving how this project works. This is my project. तो अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, किस तरीके से डेटा एक दूसरे को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये प्रोजेक्ट मेरा काम कर रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि मैंने इसमें मुख्तलिफ स्विचेस यूज़ करे हैं, मुख्तलिफ राउटर्स यूज़ करे हैं और मुख्तलिफ पीसीज यूज़ करे हैं जो कि एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं। एक पीसी से दूसरे पीसी पर डेटा जा रहा है, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में डेटा जा रहा है, उनकी कम्युनिकेशन हो रही है, सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही है। आपका डेटा कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा है या लीक नहीं हो रहा है, किसी ऐसे बंदे के पास डेटा आपका नहीं जा रहा है इसको एक्सेस नहीं है। तो मैंने एक ये सर्वर यूज़ करा है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है जो कि इन सब जो पीसीज हैं इन सबको आपस में कनेक्ट किया हुआ है इसने। जो सारे पीसी इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हैं। फिर ये कनेक्शन एक स्विच है जो इंटर स्विच है, मतलब एक डिपार्टमेंट का स्विच है उसके साथ कनेक्ट है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके उनका एक अलग एक्सेस पॉइंट है और उनका एक स्विच है। फिर ये जो स्विच है ये एक मेन स्विच का काम कर रहा है जो कि इन सब को डेटा प्रोवाइड कर रहा है। इन कैंपस मतलब सक्सेस आईबी का जो मेन कैंपस है उसका एक सेंट्रल स्विच बना हुआ है जो कि इन सब जो इंटर स्विचेस आप कह सकते हैं उनसे कनेक्टेड है। वो एक मेन सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो ये फिर जो मेन स्विच है ये कनेक्ट है राउटर के साथ। फर्स्ट राउटर, फिर ये सेकंड, ये एक्सटर्नल राउटर है, ये सिबायू का राउटर है। ये एक्सटर्नल राउटर है जिसने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, मतलब सिबा कैंपस को कनेक्ट किया हुआ है और उसको खैरपुर कैंपस को कनेक्ट किया हुआ है आपस में। ये काम कर रहा है, ये पाथ प्रोवाइड इन दोनों से कनेक्ट है जो कि सिबायू को भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है और खैरपुर कैंपस को भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है और आपस में भी इन दोनों को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, आपस में भी इनको लिंक करवा रहा है। तो ये जो नेटवर्क है एक्सटर्नल स्विच जिसको हम कह रहे हैं वो कनेक्ट है एक स्विच से जो कि एक्सटर्नल स्विच है। वो क्या कर रहा है, जब हमारे पास सिबायू का और खैरपुर कैंपस का जो राउटर है वो आपस में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में जो मेन उनको जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल राउटर वो कनेक्ट है स्विच के साथ। स्विच भी एज अ एक्सटर्नल स्विच काम कर रहा है, इंटरनल नहीं काम कर रहा, वो एक्सटर्नल काम कर रहा है क्योंकि वो मेन राउटर के साथ कनेक्ट है। और फिर उस स्विच को हमने कनेक्ट किया सर्वर के साथ जो कि हमें हर तरीके से डेटा सर्वर हमने इस तरीके से लगाया है कि हम दोनों जो कैंपस है उनका डेटा सिक्योरली रख सकें और हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। मीन्स कि हम कहीं भी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ और मैं गया हूँ किसी काम से दूसरा सिटी गया हूँ, कराची या हैदराबाद। अब मुझे एक्सेस करना है कि भाई मुझे इस थोड़ा सा काम आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर या जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ से उसको एक्सेस कर सकूँ डिपार्टमेंट को। तो अब वो क्या करेगा, अब जब जैसे अपने मोबाइल या जो भी डिवाइस है उसके पास उस पर लॉगिन करेगा तो वहां से ये उसको एक्सेस देगा क्योंकि डेटा हमारा सर्वर के पास पड़ा हुआ है। तो वो सर्वर के पास एक्सेस जाएगा जो कि कनेक्ट करवाएगा उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। मतलब सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है तो इसके एडवांटेज आप कह सकते हैं सबसे पहला तो ये कि ये इन दोनों कैंपसेस को कनेक्ट कर रहा है आपस में, जो भी कम्युनिकेशन है उनको सिक्योर रख रहा है। और दूसरा ये है कि हम इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स हम जहाँ हैं, अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है या हम AB3 में नहीं है या हम कैंपसेस में ही नहीं है दोनों में, हम सिटी आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, कहीं पे भी गए हुए हैं, तो हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। तो इसके मेन एडवांटेजेस ये हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ये वर्क सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डेटा किस तरीके से जा रहा है। मैं बताने से पहले आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूँ जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ की है। वो है हमारे पास मैंने इसमें यूज़ किया फायरवॉल।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका एक्सेस किसी को नहीं होना चाहिए, मींस इन सेंस के नहीं होना चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है कि वो AB3 में जाएं या AB2 में जाएं, उनका सिर्फ फाइनेंस से काम है। और AB3 वालों का या AB2 का या किसी भी और डिपार्टमेंट का फाइनेंस से कोई लेना देना। तो हमने यहाँ पर यूज करा है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा, वो जो भी इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा उसको ये फेल कर देगा। जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट 1 है, का PC फाइनेंस 2, ये PC 2 है। तो ये मैं डेटा भेजता हूँ इसको, एजुकेशन जो फैकल्टी है उसको डेटा भेज रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे ये फेल हो गया है, ये देखें ये फाइल फेल हो गया है। अब इसी तरीके से मैं PC 1 से अब आप डेटा भेजता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि ये देख लें, मैं CSE फैकल्टी जो है उसको भेजता हूँ। तो यहाँ पर ये फेल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने यूज़ किया यहाँ पर फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, जो आप जिसको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है तो वो उसके ब्लॉक कर देता है, मतलब उसको आने नहीं देता, उस डेटा को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। तो अब मैं इसी तरीके से किसी का मैं एक्सेस मीडिया फैकल्टी का एक्सेस दे रहा हूँ भाई कि वो फाइनेंस को एक्सेस करे। तो ये देख सकते हैं आप, ये फेल्ड हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे लाइव सिस्टम यूज करा है फायरवॉल, जिसको हम कहते हैं, जो कि इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक्सेस नहीं करने देगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट से एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट से और दूसरे डिपार्टमेंट का फाइनेंस से कोई काम नहीं है। तो इस वजह से मैंने यूज किया है। तो एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सही काम कर भी रहा है कि नहीं है। मैंने इस PC से इस PC पे भेजा है डेटा, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली चला गया, क्योंकि मैंने IT डिपार्टमेंट का जो डेटा है उसमें से IT डिपार्टमेंट के PC से भेजा है यहाँ पर BBEd लैब 1 में। तो ये जा रहा है। अब इसी तरीके से मैं इस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पर फैकल्टी को भेजा हूँ। तो फेल्ड हो रहा है, तो सबसे ये एक मरतबा होता है क्योंकि वो कनेक्टिंग में मसला होता है। आप देख सकते हैं, जैसे जब मैं दोबारा भेजूंगा तो सक्सेसफुली कर देगा। ये देख सकते हैं आप, ये आ गया सक्सेसफुल PBA1 फेसबुक कैंपस सक्सेसफुली। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो ये कनेक्शन का थोड़ा इशू देता है। उसके बाद फर्स्ट टाइम करने के बाद फेल्ड बताता है, सेकंड टाइम फिर ये सक्सेस ही बताएगा। अब मैं इस PC से इस PC को भेज रहा हूँ, तो ये अब मुझे बताएगा फेल। मैं जब दोबारा इसको इस तरीके से भेजूंगा डेटा को स्टूडेंट से PC 2 के PC को फेयरपोर्ट कैंपस के, तो सक्सेसफुल आ रहा है। तो दिस इज माय प्रोजेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।